In an age where every brand is one tweet away from a crisis and one campaign away from viral fame, the role of communications has never been more critical or more misunderstood. How do you exactly thrive in such a high pressure, high stake industry? Is PR and communications still a profession of purpose, or has it just become another cog in the marketing machine? Today, we have with us someone who has seen the industry evolve from press releases to perception management, from media lists to moment marketing. Joining us, we have Dr. Sarvesh Tiwari, founder and managing director, PR Professionals, for a candid chat on how to become a great communications professional, how is young talent nurtured, and is the future of PR as bright as it is fast? Welcome, Dr. Tiwari. Thank you so much. I would like to start with one very basic question. What is communications for you? Communications for me is connecting with each other, understanding each other. I think understanding is more important. And if you go more deep, communication is about every moment, the feeling which you go through. Communication, what happened earlier, people used to think that communication is about interacting with two people. But what my parents have told me during my early age, that you communicate with yourself also. Understanding yourself is also communication. And that is one thing which is missing. होता क्या है कि जब हम खुद को नहीं समझ पाते हैं तो हम किसी और को कुछ भी नहीं समझा पाते. And that is one point of communication which everybody needs to understand today. I think before this, I had a very different idea of communications. So thank you for changing that perception. मुझे आपसे सर ये जानना है कि in today's age, what do clients expect from a PR agency that they did not 5 years ago? So clients expects the world from you, and they always used to expect the world from you. The difference is like the learning has matured. नई चीजें आ गई, टेक आ गया है, हर दिन कोई ना कोई नई चीज आ रही है. जब जानते हैं तो मानते हैं. तो कुछ चीजें आप जानते हो, कुछ वो जानते हैं. जो वो जान रहे होते हैं वो आपसे जरूर एक्सपेक्ट करते हैं. ट्रेडिशनल पीआर थोड़ा सा बदल गया, कम्युनिकेशन का मॉडल्स नया आ गया. अब उसमें क्या होता है कि क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे 360 डिग्री हॉलिस्टिक एक रिप्रेजेंटेशन मिले, मेरी पोजीशनिंग 360 डिग्री हो, मैं बेस्ट माना जाऊं हर जगह. और उसके लिए आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और साथ ही साथ नई चीजें जो है, जैसे इन्फ्लुएंसर हो गया, टेक बेस्ड चीजें हो गई बहुत सारी, इन सब का सामंजस्य बना के एक रिजल्ट आप दे पाओ. एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल क्लाइंट टुडे. एंड जैसा कि आपने कहा कि एक 360 डिग्री अप्रोच क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है. एंड वी सी दैट इन टुडेज पीआर प्रोफेशन देयर आर 360 डिग्री talent coming in. There are people from the field of marketing. There are people from the field of journalism. Correct. There are even people from tech backgrounds. Correct. So the question arises that in today's world, what actually defines someone as belonging to a PR industry? I think the core of PR is there are certain nuances which everybody who believes that he is a communicator should possess. First thing is the content, the understanding of content, the dissemination of content. आप कैसे किसी चीज को कहाँ, कब, कैसे नहीं पहुंचाना है और कहाँ पहुंचाना है, इसकी समझ. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो मिसिंग चीज है वो यही है कि लोग समझ नहीं पाते कि मुझे कब, क्या, क्यों, कहाँ नहीं करना है. सो लर्निंग ऑफ दोज थिंग्स फर्स्ट एंड देन नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू. सो वो बहुत जरूरी है. जब ये रियलाइजेशन जिस इंसान को है, ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर फ्रॉम माई थॉट प्रोसेस. सो व्हाट माई लर्निंग हैज बीन. I mean, now that we have covered the definition of PR, I want you to use this definition. और मुझे सर आप ये बताइए कि according to you, what are the biggest gaps in young professionals today who want to enter into the communications industry? तो मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री पॉइंट अब चैलेंज नहीं रह गया. आज की डेट में अगर आप देखो, जब से ये हाथ में हथियार आया है, आई ऑलवेज कॉल इट द बिगेस्ट वेपन विच एवरीबडी पोजेस इन देयर हैंड.
ये हथियार आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में आराम से आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, इंस्टाग्रामर बन सकते हो, आप यूट्यूब पे कुछ डाल सकते हो, एंड एवरीबडी इज़ अ जर्नो, एवरीबडी इज़ अ कम्युनिकेटर टुडे, दैट हैज़ बिकम वेरी इजी। सो वो जो ब्लॉक है वो नहीं है अब, पर मुझे उससे आगे के स्टेज की चिंता है। पेशेंस खत्म हो गया, सब कुछ दनादन अभी चाहिए। वो जो चीज़ आज की डेट में गैप हुआ है नए जनरेशन में, अच्छा मुझे चाहिए सारी चीज़ें। हम लोग जब एक पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते थे तो उसमें एक आता था कि आप देश के प्रति आपके रूल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट क्या है। तो राइट के बारे में सारे हमेशा अवेयर रहते थे, बट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर नहीं रहते थे। तो होता क्या है कि आज के बच्चों में एक जो कमी है वो ये है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मैंने बहुत जगह कमी देखी और मिस होता हुआ देखा। और थोड़े दिन लंबा नहीं चलते हैं, छोटा सोचते हैं, एंड वो चैलेंज है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। इनिंग लंबी खेलते हैं तो सेंचुरी बनती है, नहीं खेलोगे तो नहीं बनेगी, सिंपल सा रूल है। इंटरेस्टिंग सर। तो एक ऐसे स्पेस में जहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग, समटाइम्स यंग प्रोफेशनल्स दे माइट फॉरगेट वेयर टू नेविगेट, हाउ टू नेविगेट। तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक यंग प्रोफेशनल को आप कैसे मदद करेंगे टू नेविगेट इन दिस वेरी हाई स्टेक्स इंडस्ट्री, व्हाट विल बी योर मूल मंत्र? मूल मंत्र इज एबिलिटी टू एम्पैथाइज। मुझे लगता है कि हम फेल वहाँ होते हैं कि हम दूसरों के हिसाब से सोचते नहीं, और ये बच्चों में समझ नहीं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमेशा ये चीज़ समझाते थे कि दूसरे के जूते में पैर कैसे डालना है, और जिस दिन आप दूसरे के जूते में पैर डालना सीख जाते हैं उस दिन आपकी समझ ये कहती है कि सामंजस्य कैसे बनाना है। यानी कि वो एसोसिएशन, एसिमिलेशन, ये सारे जो शब्द हैं ना, ये बड़े कीमती शब्द हैं, और मैं यही चाहूँगा कि नए बच्चों को ये सबसे पहले सिखाया जाए, और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। चलिए, ये तो हो गया एक प्रोफेशनल इंसाइट, पर आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर तिवारी कि अगर डॉक्टर तिवारी एक यंग प्रोफेशनल के आगे बैठे हुए हैं, एंड व्हाट वुड यू लुक इन दैट यंग प्रोफेशनल इफ यू वांट टू हायर हिम और हर? तो मुझे जज्बे से बहुत मोहब्बत है। व्हेनेवर आई, इवन टुडे व्हेन आई टेक इंटरव्यूज, मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ उनको और देखता हूँ कि उसमें वो क्या जवाब देते हैं। मसलन कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन अगर उसको मैं कहता हूँ किसी एक दिन तुम्हें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, वो अगर बड़ा इंटेलेक्चुअली रिएक्ट करता है तो मैं बहुत मोटिवेट नहीं होता हूँ। मैं तब मोटिवेट होता हूँ जब वो अपना ये दिखाता है कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उस सिचुएशन में खड़ा रहूँगा, मैं साथ निभाऊंगा, मैं उसमें एडजस्ट करूँगा। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ज्ञान तो गूगल पे मिल जाती है आज की डेट में, ये 50 रास्ते बन गए। रिश्तों में जिसका विश्वास है, जो अटूट रहता है, मुझे वो लोग बहुत कीमती लगते हैं, और मैं वही जज करता हूँ कि क्या ये निभाएगा या नहीं निभाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो आज की जेंजी लिंगो है, आर देयर एनी रेड फ्लैग्स इन अ प्रोफेशनल हु कम्स फॉर अ इंटरव्यू जिसको देखकर आपको लगेगा कि नहीं बॉस, दिस वोंट फिट? तो एक वाइब्स आती है, हर इंसान से एक वाइब आती है। वो वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका, आपका चेहरा, आपका देखने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता देता है कि ये आदमी आपके साथ रिलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे मैं जनरली देखता हूँ कि आदमी सौम्य हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, एग्रेसिव ना हो, बट बहुत लोगों को एग्रेसिव लोग पसंद आते हैं कि सेल्स में जैसे बहुत लोग ऐसा देखते हैं, तो उनको, उनके साथ उनका तारतम्य बन जाता है, वो एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर तिवारी बोल रहे हो तो वो नहीं कनेक्ट होता है। वो देखता है कि यार कितना शांत, सुशील, इन्वॉल्व होने वाला, एसोसिएट होने वाला बंदा है, लंबा चलने वाला बंदा है, और ये वाइब्स मुझे आ जाती है, और वो मैं बहुत देखता हूँ। मतलब रिश्तों की समझ ज्यादा हो, एंड जब कोई नया अकाउंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्चरिंग ऑफ दैट प्रोफेशनल इन अ 10 years टाइम? अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आप एक नए आए अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कैसे ट्रेन करते?
और आज आप उसे कैसे ट्रेन करेंगे? तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो जरूरी नहीं कि इंटर्न ही हो, जूनियर ही हो। मेरा मानना है अगर सीनियर भी हो, ऑर्गेनाइजेशन के पहले कुछ महीनों में आपको उसको बच्चे की तरह रखना होता है, बिकॉज वो शिशु है, वो बच्चा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बच्चा है। उसको नहीं पता है, यहाँ के लोग नहीं पता, यहाँ का माहौल नहीं पता, यहाँ की सोच नहीं पता। तो मेरा ये मानना होता है कि मैं उसको सबसे पहले वो जगह देता हूँ कि वो एडजस्ट करे, समझे। आई ट्रीट देम एज अ चाइल्ड, नो मैटर इवन दैट पर्सन इज सीनियर टू मी, इवन देन आई ऑलवेज गिव देम स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले और आज में क्या बदल गया है, वो ये बदल गया है कि पहले गाड़ियां धीरे चलती थी, मेट्रो कम चलती थी, स्पीड बढ़ गया है। तो जब स्पीड बढ़ जाता है तो हैंडलिंग बदल जाती है। आप तेज गाड़ी को आप दूसरे तरीके से हैंडल करते हो, धीरे चलने वाली गाड़ी को दूसरे तरीके से हैंडल करते हो। तो मैं बस इशारों में बता रहा हूँ कि समय थोड़ा बदला है। जो बहुत तेज चलने वाले हैं उनको हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, और वैसे ही का। सर, आपने अभी बहुत ही ब्रीफली पीआर के एवोल्यूशन की बात करी और फिर आपने बीच में मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की भी बात करी। एज अ ट्रेंड आई हैव सीन कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पीआर को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग रखा जाता है। हाउ डू यू सी दैट, एंड डू यू थिंक दैट यहाँ पर कुछ चेंज की जरूरत है, और डू यू थिंक दैट यस, पीआर इज हैज अ गुड प्लेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि चेंज की बहुत ज़रूरत। पीआर एक बहुत ही प्रोफेशनल काम है, और मार्केटिंग जो है, देखो सिंपल सा फ़र्क है। मैं कह सकता हूँ मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, लेकिन अगर अखबार ने लिख दिया कि 2000 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें से सबसे खूबसूरत इंसान डॉक्टर तिवारी पाए गए, तो दोनों में बड़ा फ़र्क हो जाता है। पर दोनों को एक साथ तौल नहीं सकते, दोनों का इम्पैक्ट अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों की प्लानिंग अलग है। तो मार्केटिंग के अंदर में पीआर, या बहुत जगह एचआर के अंडर में पीआर होते, बहुत जगह सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर पीआर। पीआर को इंडिपेंडेंस मिला ही नहीं, और उसका रीज़न ये है कि जो ऊपर के लोग हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी इतनी इसको तवज्जो दी नहीं। आप अमेरिका जाइए, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो सबसे नज़दीक आदमी होता है वो पीआर का आदमी होता है। मुझे लगता है भारत और हमारे जैसे कई सारे देशों में ये परिवर्तन की ज़रूरत है, जहाँ पीआर को भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के तौर पे स्पेस दिया जाए, किसी के साए में और छाए में ना रखा जाए। इंटरेस्टिंग सर। तो अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात कर ही रहे हैं, आई वुड लव टू नो हाउ डू यू सी पीआर एज अ प्रोफेशन इवॉल्विंग ओवर द इयर्स। और मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू थिंक देयर विल बी अ स्पेस फॉर न्यू रोल्स ऑफ पीआर टू इमर्ज? इज देयर स्पेस फॉर न्यू रोल्स टू बी डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्पेस। बहुत नई चीज़ें आ रही हैं, पीआर में बहुत इनोवेशन हुआ है। अब कंटेंट को लेके आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई आ गया, तो बहुत सारे इनोवेशन हो गए, क्विक हो गया, बहुत सारी चीज़ें, रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, वैरायटी आती है। और मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन के जो पैमाने थे, जो एम्बिट था, वो बहुत बड़ा हो गया है। तो आप एक्सप्रेस करने की गुंजाइश बहुत क्विक और बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अगर आप मुझे एक दो एग्जांपल्स दे सकें वेयर यू सी दैट दिस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस। मुझे ऐसा लगता है कि मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल पीआर का दिखने वाला है, बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई। सरकार में कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। कोविड में इसका अंदाज़ा लगा। कोविड में जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो ये नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज लिखी गई। आप टेक के हिसाब से अगर आप देखते हो, पीआर की नई चीज़ों में जूम कॉल्स, गूगल पे बातचीत आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इतनी पढ़ाई सारी की सारी आप देखो, एजुकेशन सिस्टम धाराशायी हो गया रहता। पर ये सब चीज़ें क्या, ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है, और कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन इसका पार्ट बनता है। तो एक तो ये मुझे दिखता है कि फ्यूचर जिस हिसाब से बदल रहा है, एक सेवियर के तौर पे आ रहा है। सरकार में इसलिए खास तौर पे जिक्र कर रहा हूँ कि सरकार
को हर चीज को बड़े लार्ज स्केल पे डिसेमिनेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल टुडे if health ministry comes with some initiative, it has to be informed to the last mile. और लास्ट माइल पहुंचने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ये टेक और नई तरीके के जो पीआर आ रहे हैं उससे पॉसिबल हो पाया. और ये अगला मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही एक एज एन एग्जाम्पल जो आपने पूछा, इट कैन बी वन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग विद द मासेस एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू कम्युनिकेशन. Thank you, sir. I think I have exhausted my list of questions. But is there anything that you felt was not addressed in the conversation? और अगर आप कुछ sprinkle of wisdom डालना चाहें, you are free to do that. तो मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे अगले जनरेशन के लिए कुछ टिप्स हमें ज़रूर, हमारा हक भी बनता है बिकॉज इंडस्ट्री में तकरीबन 2 डेकेड से ज़्यादा गुजारे हैं. और दूसरा मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो हमने सीखा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती. मेरे पास रह जाता है, आपके पास चला भी जाता है. 2 + 2 4 अगर मैंने आपको सिखा दिया तो मेरे पास 4 रह गया, आपके पास 4 चला गया. सो ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए. और इसमें मैं हर आदमी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, कम्युनिकेटर्स को, कि यार रिश्तों की अहमियत समझो. रिश्ते बहुत अहम हैं और वैल्यू सिस्टम, मूल्यों का अवमूल्यन हो गया आज के ज़माने में. आप देख रहे हो वैल्यूज हैव बीन डीवैल्यूड. तो मूल्यों को बचा के रखो, लोगों को सम्मान दो, इज्जत दो और रिश्ते बनाओ. दैट कैन क्रैक अ गोल्ड माइन फॉर यू. और उस पे सीधा चलो, बेईमानी कम करो, अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को संभाल के रखो. Right, so that's a lovely and beautiful note to end this conversation. Thank you so much Thank you. for coming on the show. थैंक यू. So there you have it. PR is not just about press invites and pitching. It's about patience, persistence, and playing the long game. Whether you're chasing headlines or handling a crisis, remember, relationships over reach and value over vanity. If you're a PR hopeful, this is your cue to sharpen your instincts. And don't forget to like, share, and send this to one of that friends who thinks PR is just about event invites. Stay tuned on Best Media Info. See you next time.